A very warm good afternoon to all. Now we are going to start this viewers meeting. So I request you to all the participants, kindly mute yourself for 2 minutes only. And firstly, as a session chair and head of the department physical science, I, Jyoti Rawat, uh, give you a warm welcome to everyone for the eminent guest on behalf of the entire Department of Physical Science and Rabindranath Tagore University, Bhopal. I would like to say it is indeed a privilege for the department to empanel you all in our viewers meeting today. A heartfelt thanks to all of the dignitaries and my dear faculty members and respected Dean, Ma'am Neetu, Dr. Neetu Paliwal, Ma'am, for accepting the invitation. Thanks a lot, Ma'am. In today's Board of Studies panel, I would like to introduce all the eminent guests. Firstly, Dr. Deepa Bhagat Ma'am, designation Principal Scientist, Organic Chemistry, ICAR, National Bureau of Agricultural Insect Resource. Dr. Deepak Patil, entrepreneur and industrialist, director, DNA Educational Group and A to Z Mentors, Indore. Dr. Ramakant Bharadwaj, sir, associate professor, Department of Mathematics, MIT University, Kolkata. Dr. Vipul Srivastav, professor, Department of Physics, Labhi Professional University, Punjab. Dr. Amit Bodh Upadhyay, OSD and Professor in Chemistry Department, Allen City University, Bhopal. Mr. Kiran More, sir, Industrialist, Manager, Quality Control, Gopal Snacks Private Limited, Rajkot. Dr. Neetu Paliwal, Dean, Faculty of Science, Rabindranath Tagore University, Bhopal. Dr. Purvi Bharadwaj, Associate Professor. Dr. Purvi Bharadwaj, Associate Professor, uh, Physics Department, RNTU Bhopal. Dr. Chitra Singh, Associate Professor, Mathematics, Department of Physical Science, Rabindranath Tagore University, Bhopal. Dr. Bhavna Agrawal, Associate Professor, Mathematics, Department of Physical Science, Rabindranath Tagore University, Bhopal. And Mr. Ranjit Kumar Puse, sir, Associate Professor, Department of Physical Science, Rabindranath Tagore University, Bhopal. In our syllabus, uh, I would like to introduce that in year 2019, lastly, we introduced our syllabus on CBCS based system for the further 3 years. That means year 2019-20, 2021 and 2021 and 22. In our department, basically UG and PG, MPhil and PhD programs are currently running. In it, BSc Honors, BSc PCM in Physics, Chemistry, Mathematics and Computer Science are available. Also, PhD in all the streams Physics, Chemistry and Mathematics are also available in department. We are following CBCS system. Now, the agenda for the meeting was based on the following points: curriculum and syllabus, teaching methodology, learning resources, skill enhancement, national education policy, and new certificate courses introducing in next year. Because the syllabus we have implemented last time 2019-20 was implemented for further 3 years. So that is why we are not going to change anything in curriculum and syllabus, but to program of changes in further year. That means 2022 we are planning this BOS to introducing in department some certificate courses, diploma courses, skill courses, and also enhancing skill research and other techniques in our curriculum and syllabus. So now, as a session chair, I would like to introduce agenda number 1 for your valuable comments and remarks for to all the invited guests. That agenda number 1 is general review of UG and PG curriculum. If anybody has some suggestions, please kindly be forward. And Dear, just I wanted to bring to your notice yeah. that could you please go to Bachelor of Science, that is 12th pass from PCM.
3HBHL101. Yeah, ma'am. Ability enhancement, there is something there is some mistake in there. Could you please? It is Hindi. It is font changing Hindi. Okay. But what is this actually? You can tell me so that I can write that correctly. And Hindi language. Hindi language. Achha, it's only Hindi language. Yeah, okay. Yeah, Hindi language. Foundation course in first sem. Acha. The same mistake is there. I think so. 1 minute in the. I think the third semester also the 302 3HBHL 302. Yeah, ma'am. It is some technical mistake. Everywhere the Hindi font changing in some Roman letters. So sorry. Okay. So you please correct that one. Okay. Just my rest all of the things I have found, everything is correct only. Thank you so much. Ma'am, please. Now, as come to on agenda number 2, strengthen the measures of UG and PG level research in science. So you all are invited for your valuable comments in the area of research and institutions. Anyone, sir? I think Jyoti ma'am, we can request to all dignitaries for giving their inputs. I think physics, chemistry, mathematics, Yeah. Can invite from Vipul sir, Ramakant sir, one by one. Actually, I'm Dr. Vipul here. Yeah. Actually, I could not go through that much of detail actually. So I just wanted to ask you that in the research, is there any compulsion for the students to do work there and publish some paper? Yes, sir. Is it in our university? It is compulsory to publish 3 papers during their PhD and 1 paper during MPhil. This in it 2 was a national paper in national publication and 1 for international publication. Okay, so these are the quality journals you are talking about, means Scopus or like this you have mentioned there? Yes, sir. Yeah, definitely, sir. In our IQAC department, there is a guideline, and we are following these guidelines and also students time to time, sir. Okay, so any conference mandatory made the things? Conference like 2 conferences should be visited or publish paper and conference also? Yes, sir. There is a there is a provision of conducting 1 international conference and at least 2 national conferences during a year for the department. It is Okay, then it is good. Yeah. Okay. And one more thing, sir, in a national scenario, as we all know that MPhil is going to conclude. Means MPhil खत्म होने वाला है, so हमारे यहाँ भी अभी तक ये चल रहा था. Right now this year MPhil प्रोग्राम जो है वो end up हो जाएगा और since 2022 ये प्रोग्राम हम इसको exclude कर देंगे. Okay. Thank you, sir. मैडम मैं डॉक्टर अमित उपाध्याय बोल रहा हूँ. Sure, sir. इसमें ये पॉइंट 2 जो आपका है रिसर्च रिगार्डिंग, उसके संदर्भ में ये मेरा सजेशन था, जैसे सर ने अभी बताया ना. Yes. तो आप लोग सेमिनार वर्कशॉप तो कराते ही हैं, पर इसमें कुछ ऐसे बेसिक आइडिया बच्चों को मिले कि SCI जर्नल क्या होते हैं, पेटेंट ड्राफ्टिंग कैसे की जाती है, पेटेंट और SCI जर्नल का क्या सिग्निफिकेंस है. और जो नहीं तो बच्चे कई बार क्या होते हैं जो लोकल जर्नल्स हैं वो तो कई बार टीचर भी उस चीज़ में आ जाते हैं, तो वो जानते नहीं SCI जर्नल या स्कोपस के बारे में. तो उनको अपन सेमिनार वर्कशॉप के थ्रू ये जानकारी देकर, और क्योंकि फ्यूचर में वो जो भी रिसर्च फील्ड में जाएंगे या PhD करेंगे या प्रोफेसर बनेंगे तो उसके लिए बड़ा लाभप्रद होगा. अभी से उनको मालूम पड़ेगा. तो ये आप जैसा आपने बताया आप करते हैं ऑर्गेनाइज, तो इस पर अपने को ऑर्गेनाइज करना चाहिए. दूसरा ये जो पहला पॉइंट था UG PG करिकुलम का, ये दूसरा पॉइंट इसको मैं जोड़ रहा हूँ एक चीज़ से कि UGC और AICTE ने ऑनलाइन कोर्सेज अभी किए हैं मैंडेटरी. तो अपन उनको रखकर, जिससे कि पेटेंट ड्राफ्टिंग का भी अभी जैसे एनरोलमेंट जारी है तो स्वयं NPTEL में पेटेंट ड्राफ्टिंग है और आपका इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड ही बहुत सारे कोर्सेज होते हैं. तो बच्चे अगर उस पर अगर अपन प्राइवेट यूनिवर्सिटी है तो अपन रख सकते हैं. वो जो गवर्नमेंट एफिलिएटेड हैं जैसे नॉर्थ इंडिया में, अभी वहाँ इतना ज़्यादा इसका एग्जीक्यूशन नहीं हो पाया है. नॉर्थ में और यूपी ने तो किया है, यूपी टेक्निकल यूनिवर्सिटी ने,
तो कम से कम अपन एक ऐसा कोर्स रख सकते हैं जो स्वयं एनपीटीईएल द्वारा संचालित है, 4 वीक 8 वीक 12 वीक जो भी है, और उसका अपन क्रेडिट ट्रांसफर कर सकते हैं। एक थ्योरी पेपर या एक कोई दूसरा वर्क उनका असेसमेंट अपन उससे कर सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं। ये मेरा सजेशन। यस सर, इसमें मैं भी थोड़ा सा बीच में बोलना चाह रहा था कि एक्चुअल में एक पीजी में भी एक कोर्स होता है जनरली, जैसे हम लोग की यूनिवर्सिटी में भी है, जिससे बच्चा इसके बाद तुरंत पीएचडी के लिए एनरोल हो जाए आपके पास, या कहीं भी एक अपना करियर बना सकता है रिसर्च में। तो उसके लिए मास्टर्स लेवल पे या नहीं पीजी लेवल पे एक रिसर्च राइटिंग प्रोग्राम या रिसर्च राइटिंग पेपर्स, या जो आपके एक पीएचडी के पहले एक कोर्स वर्क होता है ना, एक पेपर आप इसमें डिजाइन कर सकते हैं। आई थिंक सो व्हाट आई हैव गॉन थ्रू, मैं दीपा बोल रही हूँ। मैंने जो देखा है थॉरोली पढ़ करके, तो इन्होंने प्रोजेक्ट मतलब एमएससी में दे हैव टू गो अंडरगो फॉर सम प्रोजेक्ट रिलेटेड हाँ, थिंग्स। वो रहता तो है वो वैसे। प्रोजेक्ट में वो मेरे ख्याल से रिसर्च पेपर कवर हो जाएगा, क्योंकि मान लीजिए अगर कोई स्टूडेंट मेरे पास उसके आता है। अलावा मैडम, उसके अलावा पता है क्या होता है, जैसे अगर इसको करिकुलम में रख देते हैं ना, तो इसको 3 महीने तक उसको जब पढ़ाया जाता है ना पूरा डिटेल में, तो बच्चा ज्यादा अच्छे से समझ पाता है कि रियली रेफरेंस राइटिंग क्या होती है और ये स्टाइल्स क्या होते हैं। ऐसे कोर्स इसमें पढ़ाया जा सकता है, जैसे हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है। तो इस चीज को अगर अगर लगता है तो सभी की राय से कहीं ना कहीं इसको इंक्लूड करना चाहिए। ठीक है ज्योति मैडम, एक्चुअली सर मैंने आपकी बात कंसिडर मतलब सुन लिया। यस। अलग से पढ़ाने का तो मुझे ऐसा लग रहा है, अगर वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं कहीं पे जाके, मे बी नेशनल और मींस नेशनल लेबोरेटरीज में जाके, सपोज मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, तो जब वो एमएससी का प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं उसी समय हम उनको रिसर्च पेपर्स वगैरह लिखने का गाइडेंस पूरा दे देते हैं, एंड दे बिकम फर्स्ट ऑथर ऑल्सो। तो इवन दो आफ्टर दैट अगर 3 मंथ्स आप चाहते हैं कि स्टूडेंट्स इन्वेस्ट करें, तो ज्योति मैडम आप देख सकते हैं इस सजेशन को। अदरवाइज सजेशन है, अदरवाइज देयर इज समथिंग कंपल्शन। नहीं मैं ओके मैडम, मैं डॉक्टर रमाकांत भारद्वाज, मैं अपना सजेशन देना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं पीएचडी के लिए देना चाहूंगा। पीएचडी में स्पेशली जो हम 6 मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट लेते हैं, तो 6 मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट के लिए हमें स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी में बुलाना चाहिए और उसका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन लेना चाहिए। और यदि मान लो फिजिकली ये अवेलेबल पॉसिबल नहीं हो रहा है पेंडेमिक टाइम के कारण, तो हम उसका जो है ऑनलाइन प्रेजेंटेशन लें, और हमारी एक टीम बैठे जिसको हम डीआरसी बोलते हैं। सर मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगी कि अभी जो भी कोर्स वर्क के लिए 6 मंथ का आप जो रिपोर्ट का कह रहे हैं, ऑलरेडी इसमें ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं अलग अलग स्ट्रीम्स में, और वो गोइंग ऑन है। जब से पैंडेमिक स्टार्ट हुआ है, जब लोग फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो पा रहे हैं, तो वो हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं सर। नहीं, ये कोर्स वर्क की बात नहीं कर रहा हूँ मैडम, मैं कोर्स वर्क के बाद की बात कर रहा हूँ। जब उनकी आरडीसी कंप्लीट हो जाए, आरडीसी में उनका टॉपिक डिसाइड हो जाए, इसके बाद जो हर 6 मंथ में हम उनसे प्रेजेंटेशन लें कि वो क्या काम कर रहे हैं, और उस टाइम पर जनरल की क्वालिटी भी क्लियर हो जाए, किस ढंग से वर्क कर रहे हैं, हम उनको एडवाइस दे सकते हैं। अदरवाइज प्री थीसिस वाइवा के टाइम पर हम उनको एडवाइस देते हैं, टाइम बहुत कम बचा होता है, क्योंकि 4 साल के अंदर उनको सबमिट करना है, बहुत से लोग वर्किंग होते हैं, तो वो क्वालिटी अच्छी नहीं हो पाती। तो इसलिए मेरा सजेशन होगा कि हर 6 मंथ तुम्हारे या 3 महीने में हम उनका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन लें, वेदर इट इज ऑनलाइन और फिजिकल मोड। ये मेरा सजेशन है पीएचडी के लिए। समझ गई मैं। आप ये जो पैंडेमिक का एरा चल रहा है जिसमें हम लोग सारी चीजें ऑनलाइन मोड में कर रहे हैं, इसके लिए आप ये सजेस्ट कर रहे हैं सर? हाँ। ओके सर। सेकंडली मैं बोलना चाह रहा हूँ पीजी और यूजी के लिए, वैसे आपका सिलेबस कैरिकुलम आपने बताया 2023 तक 22 तक चेंज नहीं होगा। तो इसमें मैं फ्यूचर के लिए अपने तरफ से एड ऑन करना चाह रहा हूँ। हम लोग प्राइवेट यूनिवर्सिटी में हैं, तो हमें निश्चित रूप से जो कैरिकुलम इस ढंग से डिजाइन करना है कि यहाँ से निकलने के बाद स्टूडेंट को कोई ना कोई जॉब मिले, वो अपने आप को अकेला महसूस नहीं करे, वो जॉब सीकर ना हो, जॉब क्रिएटर बने। तो इसलिए जैसे बीएससी और एमएससी का मैं अपनी यूनिवर्सिटी का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। हमारे यहाँ जो सिस्टम है, एमएससी में स्टूडेंट से ये लिखवा कर हम देते हैं कि वो जॉब करना पसंद नहीं कर रहा है, या वो कहीं हायर स्टडीज के लिए जा रहा है।
अदरवाइज हर स्टूडेंट्स के लिए 100% जॉब की व्यवस्था है। तो वो स्थिति कब क्रिएट हो पाती है? मैं 5 मिनट का टाइम ले लूं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। No ओके, worry। जैसे मैं पीजी का बता रहा हूँ, जी, तो पीजी में जैसे फर्स्ट सेम आता है, वेदर वो एमएससी मैथ्स हो, कंप्यूटर साइंस हो, फिजिक्स हो, व्हाटएवर भी, कंप्यूटर में तो कंप्यूटर है ही, नो डाउट, परंतु फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जूलॉजी, बॉटनी, जितनी भी पीजी है, सब में कंपलसरी हम लोग हर सेमेस्टर में एक लैंग्वेज पढ़ाते हैं जो मार्केट में करंट सिनेरियो में चल रहा है। जैसे C++ चल रही है, जावा चल रही है, ओरेकल चल रही है, विजुअल बेसिक चल रही है। तो पहले हम देख लेते हैं, मार्केट की स्टडी करते हैं। और ये केवल हमारा जो करिकुलम होता है वो केवल 3 to 5 ईयर के लिए होता है। सपोज ये स्टार्टिंग के 5 ईयर चल रहा है, सपोज 2020 to 2025 तक हमने देखा कि मार्केट का सिनेरियो चल रहा है कि C++ चाहिए बच्चों को जॉब के लिए, ओके, या ओरेकल चाहिए, विजुअल, तो 5 साल तक हम इसको चलाएंगे। और यदि मान लो 5 साल के बाद यदि मान लो हमें लगता है कि तीसरे साल में मार्केट चेंज हो रहा है, तो तुरंत उस चीज को चेंज करके हम दूसरी लैंग्वेज सिखा देंगे। तो फर्स्ट सेम, सेकंड सेम और थर्ड सेम पीजी के लिए ये हमें कंप्यूटर की लैंग्वेज जरूर सिखाना। एक नंबर सेकंड सजेशन है जी सर। कि हाउ टू मैनेज स्ट्रेस। या, आज के टाइम पर बच्चों के लिए सबसे बड़ी जरूरत है जी, उनका, हमें मनोबल बढ़ाना है, जी, उनका कॉन्फिडेंस लेवल ग्रो करना है। या, तो इसके लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट का नॉन टीचिंग क्रेडिट कोर्स, NTCC जिसे बोलते हैं, तो उसको हमें ऐड किया जाए। जी, भले उसका एग्जाम ना हो, हम उसका सेशनल ले लें जी, और उनको समझाया जाए, पढ़ाया जाए। जी सर। नंबर थर्ड, एक फॉरेन लैंग्वेज हमें जरूर सिखाना है, वो फ्रेंच हो या जर्मन हो। जैसे पीजी के लिए फर्स्ट सेमेस्टर में हमने 2 ऑप्शन रख दिए, whether they are interested to German language or they are interested to French। तो करना चाहूँ सर, सॉरी टू इंटरप्ट यू, थोड़ा यस, ऐड करना चाहूँगी। हमारे यहाँ पे ये जो फ्रेंच और जर्मन लैंग्वेजेस के आप बात कर रहे हैं, इनके कोर्सेज ऑलरेडी ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट से कंडक्ट होते हैं, और हम लोग उसमें एप्लीकेशन इनवाइट करते हैं कि जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो उसको करें। सो क्या सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम उसको कंपल्सरीली यस, एवरी डिपार्टमेंट में करें, ऐसा? हाँ बिल्कुल कंपलसरी कीजिए इसको, ओके, और उसका एग्जाम भी लीजिए। ओके, उससे आप ये देखेंगे कि अपनी यूनिवर्सिटी की आपकी बहुत इमेज होगी, क्योंकि जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में अवेलेबिलिटी नहीं है या जो कंपल्सन नहीं है, आप यदि रखते हैं, तो यदि कोई स्टूडेंट बाहर जाना चाह रहा है तो उसके लिए बहुत बेनिफिट होगा। तो वेदर इट इज जर्मन और फ्रेंच या कोई थर्ड लैंग्वेज, और इंग्लिश तो सभी जानती हैं। और यही कंडीशन बीएससी में होना चाहिए, क्योंकि बीएससी में हमारे पास 6 सेम है, तो 6 सेम के हर सेमेस्टर में एक कंप्यूटर की लैंग्वेज, क्योंकि बेसिक मैंने देखा आपने बेसिक फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर रखा हुआ है। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर आज के टाइम में 9-10 से शुरू हो जाता है बच्चों के लिए, बल्कि प्राइवेट स्कूल वाले 6 क्लास में कंप्यूटर बिल्कुल कंपलसरी कर देते हैं। तो 6 to 12 everyone well known about the fundamental of computer। यस, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के अलावा हम फर्स्ट ईयर से लैंग्वेज प्रोवाइड करें, और हम बच्चों को ये बताएं कि कैसे वो जॉब क्रिएटर बने। ओके, As far as I am giving my example, in 2009 मैं ताइवान में था। जी, तो ताइवान में मैंने देखा, जो आज हम देखते हैं कि चाइना के जो आइटम्स इतने सस्ते क्यों आते हैं या ड्यूरेबल क्यों नहीं है, बहुत जल्दी उसकी कोई गारंटी नहीं। उसका मेन रीजन है वहाँ के स्कूल कॉलेज में मैंने विजिट किया और देखा कि बीएससी फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट डायोड बनाना है, कोई ट्रायोड बना रहा है, कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम बना रहा है, और टीचर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी। सपोज कोई फिजिक्स का टीचर है, तो फिजिक्स के टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको इतना रॉ मटेरियल दिया गया है, इस मटेरियल में आपको बच्चों को ट्रेंड करना है और इतने आइटम बना के देना है। ओके सर, तो एक प्रकार की वो इनकम भी है और बच्चों की ट्रेनिंग भी है। 11-12 के बच्चे, 9-10 के बच्चे जो छोटे छोटे खिलौने होते थे वो बना रहे थे। तो हमें इस ढंग से काम करना है कि हर सेमेस्टर में, जैसे बीएससी फर्स्ट ईयर में लिया, उसका बेसिक हुआ, सेकंड सेमेस्टर में उसका और एडवांस वर्जन हुआ, थर्ड सेमेस्टर, 6 सेमेस्टर तक कंडीशन ये रहे कि कोई स्टूडेंट यहाँ से निकल कर
चाहता हो कि मुझे जॉब नहीं करना है, मुझे फैक्ट्री डालना है, या मैं स्केल इंडस्ट्रीज खोलना चाह रहा हूँ, तो हम उसकी हेल्प करें, वो खुद जॉब क्रिएटर बन जाए। ये मेरी एडवाइस है। और रविन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी बहुत आगे बढ़े, ये मेरी शुभकामनाएं। जी जी सर, अभी और आपको सजेशन देने एजेंडाज और हैं अपने पास। ओके। थैंक यू सो मच सर फॉर योर वैल्यूएबल कमेंट्स एंड मैडम एक्चुअली जो बाकी सारे सजेशन है डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड वन, बट इसमें से जो ये है स्ट्रेस मैनेजमेंट का, तो आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी रियली यू नो फॉरएवर फॉर देम विद देम फॉर लाइफ एक्चुअली। तो क्या है इसमें मैं आपको बताना चाहूंगी कि जैसे हैप्पीनेस प्रोग्राम होता है, आजकल ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, मैं खुद हैप्पीनेस टीचर हूँ इसकी आर्ट ऑफ लिविंग की, तो आप चाहें तो मेरा नाम भी लिख सकते हैं एंड आई एम रेडी टू गिव दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू वैसे हाँ, तो आप जो है ये देख लीजिए कि ये हैप्पीनेस प्रोग्राम इनका ऑनलाइन ब्रेथ एंड वर्कशॉप बोलते हैं, दैट इज वेरी गुड एक्चुअली, वेरी गुड प्रोग्राम। So you can write a letter to me. So surely I will be a bridge between Art of Living and your organization. You're always welcome, ma'am. Always. I will plan on it and contact to you soon, ma'am. Thank you so much. Sure, dear. Sure. Thank you. Now come to the agenda number 3 to discuss the innovative teaching methods and FDP topics. Anyone want to add on to teaching methods, especially in this pandemic era, online mode, all the things have been changed now. So we have to think on online teaching and some other methodology for the future. So any suggestion from anyone? इसमें तो अपन सभी टीचर हैं तो बहुत अच्छे आइडिया दे सकते हैं, जो आपने जो अडॉप्ट किए हैं ड्यूरिंग पेंडेमिक और बिफोर पेंडेमिक। तो इसमें ये है कि हम जो अगर हम ऑफलाइन टीचिंग की बात करें, फेस टू फेस टीचिंग की, तो उसमें आजकल सभी के यहाँ स्ट्रक्चर में आपका प्रोजेक्टर्स लगे होते हैं, तो उसमें हम इंटरेक्टिव मतलब क्लास को इंटरेक्टिव बनाने के लिए और स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट मतलब उनका इंटरेस्ट को और बढ़ाने के लिए इसका यूज़ करें। कुछ जैसे वीडियो है, मान लीजिए हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, उस फील्ड में कोई इनोवेशन हुआ है या फिजिक्स में, तो उस इनोवेशन का वीडियो 2 या 3 मिनट का दिखाएं, फिर बच्चों को उसमें गूगल फॉर्म या कोई ऐसा सर्वे करवाएं कि उन्होंने उससे क्या कंक्लूजन निकाला, मतलब सक्सेस या कोई सक्सेस स्टोरी बताएं किसी साइंटिस्ट की या किसी स्टार्टअप की। तो इस प्रकार जो भी टीचिंग है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, वो उसका ज़्यादा फायदा होगा। और इसके अलावा डिस्कशन जो पुरानी चीज़ें हैं होती हैं करवाती हैं, एक कोई सा भी टॉपिक हो, साइंस का हो चाहे आर्ट्स का हो, उसमें अगर हम बच्चों से डिस्कशन करते हैं कि जैसा हमने पढ़ाया, मान लीजिए फिनोल का सिंथेसिस, उसकी सिंथेसिस की डिफरेंट प्रोसेस हैं, उसकी मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म भी 2-3 हैं, तो इस मैकेनिज्म का क्या फ़ायदा है, सेकंड वन का क्या है, क्या उसकी यूटिलिटी है। इस प्रकार से मतलब इंटरेक्टिव बनाए जितना ज़्यादा हो सके, उसमें जितने एफर्ट अपन डालेंगे, तो स्टूडेंट्स का क्या होता है कि वो मतलब कि वो जर्मन की, तो मैं सॉरी बोलूँगा उनसे। क्या है, बच्चे आते हैं तो बच्चे आ रहे हैं रिमोट एरिया से, बच्चे आ रहे हैं तो वो प्रॉपर वो हिंदी और इंग्लिश भी नहीं समझ पा रहे हैं, उनकी लोकल लैंग्वेज में ही बात करते हैं, ये हम फेस करते हैं प्रॉब्लम। तो हम पहले तो अपनी मातृभाषा और दूसरी जो लैंग्वेज है उसमें थोड़ा कोशिश करें और उसको इंटरेक्टिव बनाए। बच्चों में हेजिटेशन है, डर रहता है उनमें। क्या होता है, एक ही क्लास में 60 बच्चे हो सकता है, 60 का बैकग्राउंड अलग हो, साइकोलॉजिकल, फाइनेंशियल, तो कई बच्चे क्या होते हैं ना कि वो डर जाते हैं। कोई इंग्लिश बोल रहा है, सेंट जोसेफ का पढ़ा हुआ है, और कोई बिहार के या यूपी के या एमपी किसी छोटे गाँव से आया है, तो वो हेजिटेट हो जाता है। तो उसके अंदर जो साइंस, एक साइंस छुपी हुई है, वो जानता है साइंस के बारे में, उसको डिस्कस ही नहीं करता है वो केवल लैंग्वेज के कारण। तो उसको हम समझें कि उसको इस प्रकार, अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में तो बेसिक जो एजुकेशन है वो तो लोकल लैंग्वेज का ही बोला गया है, तो हम उस लोकल लैंग्वेज को लेकर और भाषा को लेकर मेन हमारा जोर हो कि वो साइंस को समझे और साइंस को प्रेजेंट करता है। मतलब क्षेत्रीय भाषाओं में हम कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज इस तरह से प्लान कर सकते हैं? कर सकते हैं क्षेत्रीय भाषा में, नहीं तो अपनी हिंदी भाषा में या मिक्स्ड में। मतलब मेन उद्देश्य अपना है कि वो अपने सब्जेक्ट को समझे और उसमें आगे बढ़े, जो सब्जेक्ट उसने लिया है बड़ी इच्छा से, उसकी इच्छा से लिया है उसने। जी 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 सर, बिल्कुल
सही, बिल्कुल। हमारे यहाँ तो ऑल ओवर इंडिया, इंडिया के बाहर से भी बच्चे हैं। बिल्कुल आपने बहुत एक कंसर्निंग टॉपिक रेज किया है। कई बार स्टूडेंट्स को काफ़ी दिक्कत होती है, कुछ एकदम रिमोट एरिया से आते हैं, तो कुछ एकदम से बिल्कुल हाई फाई एकदम इंग्लिश वाले बच्चे आते हैं, और साथ में ये अपने यहाँ पे साउथ अफ्रीकन स्टूडेंट्स बाहर के बच्चे भी हैं। तो लैंग्वेज वाला पॉइंट सर बिल्कुल हम नोट करेंगे, इस पे हम लोग वर्कआउट करेंगे, कोशिश करेंगे कुछ सर्टिफिकेट कोर्स इस तरह से इस मॉड्यूल्स हम डिजाइन कर सकें सर। थैंक यू सो मच सर। इन इसमें अगर मैडम जैसे कि सर ने भी बोला अभी, और मुझे ऐसा लगता है कि जो हम लोगों का आजकल टाइम है, जिस तरीके से हम लोग पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन मोड में, जी सर। और अगर यही आप इस पे थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं अगले साल भी जैसे कैसे पढ़ाना होगा क्योंकि ऑनलाइन है, तो इसमें जैसे लेक्चर जो रहता है उसका टीचर्स लोग थोड़ा सा ऐसा, क्योंकि हम लोग पहले से ही प्लान तो बनाते ही हैं टीचर सभी पढ़ाने का कि पढ़ाने में क्या रखना है क्या नहीं रखना है, तो उसमें अगर पावर पॉइंट एक आपका प्रेजेंटेशन तो आज के टाइम में रहता ही है, उसके साथ में जैसे 3 मिनट का या 4 मिनट का, बहुत ऐसा नहीं कि आधे घंटे का कोई वीडियो दिखा रहा है, तो 4-5 मिनट तक का एक वीडियो बच्चों को सब्जेक्ट कंसर्न जो उस टॉपिक को पढ़ाया जा रहा है उस टॉपिक को लेके एक तो वीडियो दिखाया जाए, और जब लेक्चर थोड़ा एंड होने को हो तो उसी में बस 5 क्वेश्चन, ज्यादा नहीं, मतलब क्योंकि टाइम भी हमको मैनेज करना है, 5 क्वेश्चन एमसीक्यू रिलेटेड भी वहीं पर रखना चाहिए, जिससे जिससे ये होता है वो क्विज के उसमें आ जाता है कि मतलब आपने एक क्विज कराई और बच्चों ने उसमें कितना पार्टिसिपेशन किया और बच्चे उसको कितना गेन कर पाए, मतलब लेक्चर को कितना नहीं समझ पाए। ये चीजें बहुत मैंडेटरी लेवल पे नहीं, मतलब ये कि आपको एक लेक्चर में इतना प्लान करवाना चाहिए टीचर से जब प्लानिंग का होता है, तो ये एक नई चीज थोड़ा तरीके की हो सकती है क्लास में इस ड्यूरेशन में। सर मैं ऐड करना चाहूँगी इसमें कि जो आप वीडियो की बात कर रहे हैं, तो शॉर्ट वीडियोस हम लोग ऑलरेडी यूज़ करते हैं, उसमें 3 मिनट्स 4 मिनट 5 मिनट्स, कई बार ऐसी हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल्स हैं या स्किल्स हैं, मेथोलॉजी है या इंडस्ट्रियल कुछ थिंग्स या चीज़ें हमें जो दिखानी है जो हम थ्योरेटिकल वे में नहीं बता सकते, तो उनको दिखाने के लिए ऑलरेडी हम लोग वीडियो वाला जो पोर्शन है उसको यूज़ करते हैं सर। दूसरी बात, लेकिन ये आपने बहुत अच्छी बोली कि हम एट द टाइम आफ्टर द एंड ऑफ द लेक्चर हम एमसीक्यूज और ये वाली जो एक्टिविटी है उसको परमानेंटली ऐड करें। हाँ, एक्चुअल में क्या होता है कई यूनिवर्सिटीज में सिर्फ 45 मिनट्स का लेक्चर होता है, तो वहाँ प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे हमारे यूनिवर्सिटी में 1 घंटे का लेक्चर होता है क्योंकि 1 क्रेडिट देते हैं उसको, तो 1 घंटे का लेक्चर होता है, तो इसमें टाइम होता है कि हम ये सब कर सकें, जी सर। जी तो उसको देख मैम के करिए। ओके सर। मैम मैम मैं भी कुछ कहना चाहूँगी। जैसे कुछ स्टूडेंट जिस भी टॉपिक पे यदि वो सेमिनार के फॉर्म में या फिर पीपीटी प्रेजेंट करते हैं तो उन्हें कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। स्टूडेंट्स खुद भी पावर पर प्रेजेंटेशन टॉपिक पे क्लास में आके प्रेजेंटेशन दें, इट विल डेवलप पर्सनैलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स। तो इस पे भी आप थोड़ा सा देखिए। थोड़ा सा मैम नॉइस डिस्टर्बेंस हुआ है, कैन यू रिपीट इट प्लीज मैम? मैम मैं ये कहना चाह रही थी, स्टूडेंट्स सेमिनार के थ्रू या किसी भी टॉपिक पे पीपीटी के फॉर्म में यदि वो प्रेजेंट करते हैं अपना टॉपिक, तो उसमें कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप होगा। यदि आप थोड़ा सा देख लीजिए। ओके मैम, पॉइंट इज नोटेड। सेमिनार पर ऑल जो भी थ्रू स्टूडेंट्स। Okay ma'am. Okay. Now thank you so much ma'am. Now agenda number 4, discussion on various competitive exams strategies and e-learning platforms like the setup of e-labs and enhancing e-learning. I would like to request especially Dr. Deepak Patil sir, can you please give your significant remark on it, because sir is doing very well in this field. Dr. Deepak. हेलो। या आप कुछ बोल रहे हैं क्या? एक्चुअली मेरा बैंडविड्थ थोड़ा कम है तो इसीलिए मैंने कैमरा ऑफ कर दिया है। कोई बात नहीं मैम। ओके मैम। देयर वाज एजेंडा नंबर 4, डिस्कशन ऑन वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स strategies and e-learning platforms like the setup of e-labs and enhanced e-learning. Any suggestion on it ma'am?
दिस इज अ गुड थिंग। ई लैब अच्छा है, अगर फैसिलिटी हमें मिल जा रही है सारी जगह से, मीन्स देन इट्स अ गुड थिंग। Okay. Okay, ma'am. Anybody else? Any suggestion? मैडम मैं कुछ बोलना चाह रहा था, स्पेशली मैथमेटिक्स के लिए बोलना चाह रहा हूँ। जी बीएससी मैथमेटिक्स जी जनरली हम लोग पीपीटी बना लेते हैं और स्टूडेंट को पीपीटी दिखा रहे हैं, या समटाइम्स बोर्ड सेट करते हैं कि उस बोर्ड से बच्चों को दिख जाए कैमरे से। तो इससे कंपेरेटिवली मैं चाहता हूँ हर टीचर मैथमेटिक्स के इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड यूज करें। Okay. जो हम पीपीटी दिखा रहे हैं, पीपीटी के कंपेरेटिवली इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हर स्टेप हम उसमें लिखते जा रहे हैं। Okay. क्योंकि पीपीटी दे दी स्टूडेंट्स को तो वो उनको मालूम है कि आधे घंटे 1 घंटे बाद हमें मिल जाएगी, क्योंकि टीचर भी पढ़ना है Okay. और स्टूडेंट सुन रहे हैं। Uh, सपोज हम कोई इक्वेशन लिख रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स तीनों में ये इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड का सजेशन मैं दूंगा। और जो भावना मैडम ने कहा कि बच्चों को यदि मान लो उनको खुद पार्टिसिपेट किया जाए, वीकली उनसे कहा जाए कि आज इस वीक इस स्टूडेंट का नंबर है 10 मिनट के लिए, जी आपको अपने टॉपिक पे बोलना है। नेक्स्ट वीक दूसरे का आ गया, ऐसे हर वीक में हम प्रयास करके स्टूडेंट्स को बोलने का उनकी प्रैक्टिस कराएं। इट विल बी बेटर फॉर देयर नॉलेज टू एनहांस देयर कॉन्फिडेंस। थैंक यू मैम। Okay. Okay. Thank you so much, sir. Are already done in seminar process. मैम आप उधर जाके। ओके, चित्रा मैम कुछ कह रहे थे? यस यस, मैं ये कहना चाह रही थी कि सेमिनार प्रोसेस ऑलरेडी हम लोग करते हैं बच्चों के कोर्सेज में, क्योंकि सेशनल मार्क्स वगैरह है तो उसमें सेमिनार इंट्रोडक्शन है कि बच्चा अपना पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन डिपार्टमेंट में देता है। Okay. Also, we have talked about new education policy in 2020. In 4 years, bachelor degree program in CUP. Then 3 years bachelor degree program in process, but 1 year is also introducing. So, which paper you have selected in this? Just you talk about in research IPR, in research collaboration, it add in 4 degree program. तो सर जस्ट मैं ये कहना चाह रही हूँ कि IPR की जैसे विपुल सर बात कर रहे हैं और रमाकांत सर बात कर रहे हैं रिसर्च के लिए, तो उसमें क्या अपन को फाउंडेशन कोर्सेज और ये जो प्योर मैथमेटिक्स है, फिजिक्स केमिस्ट्री स्किल इनहेंसमेंट कोर्सेज, तो उसका अभी सिलेबस डिजाइन नहीं है, बट उसे अगर इम्प्लीमेंट करेंगे तो 4 इयर्स बैचलर डिग्री प्रोग्राम अपन को भी ऐड करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या सिलेबस किस टाइप का होना चाहिए, तो जस्ट प्लीज सजेस्ट यू इन ओपन प्लेटफॉर्म ऑफ BOS. Ramakant sir, this question is for you from the side of Chitra ma'am. Yes, Chitra madam. जी Yes, please repeat one. यस सर, अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो आई है तो उसमें 4 इयर्स बैचलर डिग्री प्रोग्राम है, तो 3 तो बैचलर डिग्री प्रोग्राम ऑन प्रोसेस है, बट अपन को 1 ईयर ऐड करना है, तो उसमें किस टाइप का सिलेबस अपन डिजाइन करें? क्या उसमें फाउंडेशन चाहिए, स्किल बेस होना चाहिए, या फिर सर जैसे IPR और रिसर्च मैथोडोलॉजी का सिलेबस है, क्योंकि 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम में रिसर्च कोलैबोरेशन की ही बात है, तो अपन उसके लिए सिलेबस का सर जस्ट एक डिस्कशन है कि उसमें किस टाइप्स के सब्जेक्ट अपन इंट्रोड्यूस करें, कि जैसे आप बात कर रहे हैं कि बच्चा अब जॉब के लिए घूमे ना, मतलब जॉब खुद क्रिएट करे, तो इस टाइप का अपन सिलेबस डिजाइन कर लें कि बच्चे को दिक्कत ना हो। तो उसमें भी यही करना चाहूंगा कि जो 1 साल में हमारे पास 2 सेमेस्टर हैं, तो फर्स्ट सेमेस्टर में सभी का बेसिक फंडामेंटल हो, यस सर, जो उनके जॉब ओरिएंटेड हो, और सेकंड सेमेस्टर जो आता है वो स्पेसिफाई हो जाए। जैसे मान लो किसी को हायर स्टडीज करना है, रिसर्च एरिया में जाना है, सपोज किसी को TIFR जाना है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, तो उसके लिए क्या क्या हमें
जरूरत है उसके लिए किस ढंग से प्रिपरेशन करना है, रिसर्च कोलैबोरेशन कैसे कर सकता है या फॉरेन में स्टडी करना है, तो जो सेकंड सेमेस्टर है वो पर्टिकुलर हर स्टूडेंट के लिए, एक ग्रुप के लिए अलग हो। बाकी फर्स्ट सेमेस्टर जो रहेगा उसका 4th ईयर का, वो जनरल हो, जो सभी को एक साथ काम पड़े, और स्पेशली उसमें होना चाहिए कि जो जॉब ओरिएंटेड हो। ओके, जॉब ओरिएंटेड प्लस रिसर्च। ओके, जॉब ओरिएंटेड प्लस रिसर्च। सपोज जैसे आपने आईपीआर कहा, तो आईपीआर भी कोई जनरल वर्क नहीं है, आईपीआर के भी बहुत बेनिफिट्स हैं, तो स्टूडेंट्स पहले से सीख जाएंगे। इंटरप्रेनर इंट्रोडक्शन ओके, बच्चों के लिए नीडफुल है आज के टाइम में। ठीक है सर, यही है, क्योंकि 4th ईयर का सिलेबस सर अपन को डिजाइन करना पड़ेगा। 3 इयर्स का तो अपन रन कर रहे हैं, तो 4th ईयर के सिलेबस के लिए जैसे आपने बात की कि पूरे जो सब्जेक्ट है, जैसे बीएससी के जो क्रिएटिव सब्जेक्ट्स है, उनका अपन इसमें कोलैबोरेट करके बच्चों को जॉब क्रिएटिव बनाए। सब्जेक्ट ना पढ़ाएं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स हम बिल्कुल नहीं पढ़ाएं। उनको ये लगे कि 4th ईयर हमारी ट्रेनिंग है। जैसे इंजीनियरिंग वाले बच्चे इंटर्नशिप करते हैं 6 महीने के लिए, मेडिकल वाले जो एमबीबीएस कर रहा है वो इंटर्नशिप करने के लिए जाता है। तो हमें क्या है, जस्ट लाइक इंटर्नशिप, और वो किस फील्ड में करना चाह रहा है, एक ग्रुप को वैसे डिवाइड कर दिया जाए कि 10 बच्चे इसको कर रहे हैं, 10 दूसरे को कर रहे हैं, सभी को अपने अपनी इंडिपेंडेंसी रहे। और यदि मान लो कोई बाहर जाके 1 साल की इंटर्नशिप या 6 महीने करना चाह रहा है, किसी की इफिशियंसी कि वो उसका फॉरेन से कोलैबोरेशन हो गया, फॉरेन में जाकर इंटर्नशिप करना चाह रहा है, तो हमें उसको फ्री करना है कि ठीक है आप 6 मंथ डिग्री यहाँ से कर लें, 6 मंथ आप जो है फॉरेन में कर लें, दोनों को मिलाकर हम यहाँ से डिग्री देंगे 4 साल। ओके मैडम। ज्योति मैडम अनम्यूट कीजिए। Thank you so much, Chitra ma'am, and thank you, Ramakant sir. And as we see on agenda number 5, to explore skill, dissertation, and project possibilities. I think काफी सारे points जो है previously हम इस पे discuss कर चुके हैं, but remarkably अगर कुछ something add on हम करना चाहें तो anybody are welcome on skill, dissertation, project possibilities. Any idea from anyone? आप मैडम दीपक सर से बात कर लीजिए, शायद दीपक सर अभी तक नहीं आए हैं। जी है मैम जॉइंट, वो कोई उनको कुछ इंजरी कुछ समथिंग हो गई है, तो वो बोल रहे हैं मैं ड्रेसिंग मैम करा रहा हूँ, लग गई उनको वहीं उनके कैबिन में, तो वो उठ रहे हैं, तो वो बोले कि मैं ज्वाइन करके 5 मिनट में आपको करता हूँ। Dr. Amit Upadhyay sir, you have suggested me previously as on our previous discussion about teaching, including teaching in dissertation in higher education. So please, would you like to say? मैडम मैं ये चाह रहा था कि जैसे कि वो जो भी रमाकांत सर भी मैथमेटिक्स में बता रहे थे कि अपन बच्चों को ऐसा ग्रुप बना दें, जैसे कोई टीचिंग में जाना चाहता है, पीजी अपन नेट निकालते हैं, अपन पीएचडी करते हैं, कॉलेज में टीचिंग के लिए जाना चाहता है या स्कूल में भी जाना चाहता है, तो उनके लिए अपन टीचिंग का एक इंटर्नशिप टाइप कर दें। मतलब कि वो किसी कोलेबोरेशन कर लें, किसी स्कूल कॉलेज से या किसी यूनिवर्सिटी से एमओयू कर लें, और वो क्या करेंगे कि अपन उनको एज ए टीचर, ट्रेनी टीचर बोल सकते हैं, या एज ए उसको जो भी नाम देना चाहें, टेक्निकली इंटर्नशिप बोल सकते हैं या एनहांसमेंट ऑफ टीचिंग स्किल बोल सकते हैं। तो वो जाके वहाँ पढ़ाएं और उसकी पूरी रिपोर्ट फीडबैक आ जाएगा, और वो उसकी वहाँ पे अच्छी ग्रूमिंग होगी, तो टीचिंग स्किल डेवलप हो जाएगी। क्योंकि बीएड में तो क्या होता है कि वो तो मस्ट जाना ही पड़ेगा, अटेंडेंस भी ली जाती है उनका कि वो कितने दिन गए हैं, पर यहाँ हायर एजुकेशन में ऐसा कुछ नहीं है। बाकी NITTR और ये हैं आजकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, बट उसके पहले अगर इस प्रकार की व्यवस्था अपन अपनी यूनिवर्सिटी कर दे तो एक यूनिक एग्जांपल अपन सेट कर सकते हैं। जी थैंक यू। मैडम इसमें मेरा एक सजेशन हो रहा है, उपाध्याय साहब ने बहुत अच्छी बात कही, परंतु इसमें टेक्निकली जो फॉल्ट है, क्योंकि अपने भारत में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हम हर चीज का तोड़ निकाल लेते हैं, हर चीज का शॉर्टकट ढूंढते हैं। तो जो मैं जाता हूँ कहीं गवर्नमेंट कॉलेज में भी, यूनिवर्सिटी में भी, बाय लेने जाता हूँ,
तो जहाँ इंटर्नशिप हो रही है एमएससी की या यूजी की, बीएससी की, तो 10 बच्चों का एक सा प्रोजेक्ट दिख रहा है। तो हमें अच्छा आउटपुट यदि चाहिए तो जी। आपको खुद अपने आप में, जैसे सर ने, उपाध्याय सर ने कहा कि आप खुद एमओयू करें। बच्चों में फ्री नहीं छोड़ें कि आप इस स्कूल से ले आए या कोचिंग से अपना सर्टिफिकेट बनवा के ले आए, उन्होंने 500,000 खर्च किए और गए, वो थोड़ा सा इधर उधर से कॉपी किए और ले आए। हमारा उद्देश्य बच्चों को हम ट्रेंड करें, जी 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 बिल्कुल एक फॉर्मेलिटी बच्चों के लिए नहीं रहे। और यदि फॉर्मेलिटी कर रहे हैं तो हम उनको एडवाइस करें कि नहीं, ये फॉर्मेलिटी आपको नहीं करना, ये आपके भले के लिए, आप सीखें। तो सर। 8-10 इंस्टीट्यूट से हमारा एमओयू हो, वो बराबर एक जो टीचर का अपॉइंटमेंट इसीलिए हो, जी मेंटर का, जो सभी को वॉच करे। एक ग्रुप पर एक टीचर 10 पर जरूर होना चाहिए, ओके 10:1 पर जरूर होना चाहिए। सर, ये बहुत अच्छी बात कही आपने कि हम लोग खुद एमओयूज करवाएं लैब्स के साथ, और यहाँ क्योंकि हाँ इसमें काफ़ी सारा फ्लैगरिज्म और कॉपी पेस्ट की गुंजाइश रहती है। कई बार कई बच्चों के प्रोजेक्ट्स एक जैसे लगते हैं। बिल्कुल इस चीज़ पे सर ये बहुत अच्छा सजेशन आया है कि हम खुद लैब्स के साथ एमओयू करके और एक ट्रू एंड ऑथेंटिक डिजर्टेशन को हम लोग एनहांसमेंट करें। इसको बिल्कुल सर हम लोग नोट करेंगे, इस पे काम करेंगे। थैंक यू सो मच सर। नाउ दीपक सर हैं हमारे बीच, थोड़ा सा उनको कुछ इंजरी हो गई थी, सो नाउ आई थिंक सर यू आर ओके, सो Yeah, ma'am. Yeah. या प्लीज बी फॉरवर्ड। Yeah, please. Hello to all. I am Deepak, Dr. Deepak S. Patil. I am Director A2Z Mentors. As well, I am a co-founder of DNA Education Group, Mumbai. Basically, I just introduce 30 seconds of myself. Then I will speak on the research work. Hello. Are you getting me? Are you getting me all? Yes sir। Yeah. So what we are doing, अभी right now अगर आप देखें कि इंडिया में जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, whether it is IIT, IISc, TIFR, NCBS, or you are following MIT, Michigan, Oxford, Marie Curie, इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज कैसे होता है? इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज होता है बिकॉज ऑफ यू स्कॉलर्स एंड योर प्रोड्यूस स्कॉलर्स। आपकी दो चीजें ऐसी है इंस्टीट्यूट में कि आप कैसे स्कॉलर्स आपके यहाँ पर हैं और आप कैसे स्कॉलर्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं। इन अ सेम मैनर वी हैव ऑक्यूपाइड विद्या भारती पैन इंडिया 15 लाख स्टूडेंट्स। हमने पिछले कोविड में विद्या भारती के लिए 15 लाख बच्चों को ऑन बोर्ड किया पूरे इंडिया से। उसके लिए नेक्स्ट ईयर राष्ट्रपति अवार्ड के लिए भी हम नॉमिनी हैं। सेकंड चीज, वी हैव वर्क फॉर द यूनिवर्सिटी, मुंबई यूनिवर्सिटी कलीना कैंपस, in Indore, Devi Ahilya Vishwavidyalaya, Holkar Science College, and there are so many RUSA-funded colleges of Madhya Pradesh. We are working for them in Madhya Pradesh, in Uttar Pradesh, and Northeast. So now, my suggestion is, if you want your university to be an intellectual, to have an intellectual asset, कि हम ये चाहते हैं कि हमारी यूनिवर्सिटीज का या हमारे बोर्ड ऑफ स्टडी का जो करिकुलम है, या हमारे जो बच्चे फिजिकल साइंस, केमिकल साइंस या मैथमेटिकल साइंस में हैं, नाउ दिस कोविड टाइम प्रूव्स दैट कि इफ वी हैड अ रिसर्च स्कॉलर देन विल कम्पीट ऑल ओवर द वर्ल्ड। यदि रिसर्च स्कॉलर हमें निकालेंगे हम, तो ही हम वर्ल्ड से कम्पीट कर पाएंगे, एंड देन ओनली विल हैव अ मेक इन इंडिया। सो विद द सेम मैनर, क्योंकि पिछले 15 सालों में आई हैव रिसर्च फील्ड एज वेल, कि मोर देन 1500 स्टूडेंट ऑफ माइन who have got PhD from IIT, IISc, NCBS, TIFR, and all over the world, what they were doing. And you also understand कि if you are having any scholarship like UGC or a CSR net funded scholarship or a ICAMR, if you are having any scholarship in India, you will become an asset for your institution, you will become an asset for yourself. और उसके बाद आप चाहें तो इंडिया के बाहर अपना कैरियर बनाना चाहें तो बना सकते हैं, इंडिया के अंदर बनाना चाहे तो आप बना सकते हैं, बट ऑल टू ऑल हमको यूनिवर्सिटीज में ज्यादा से ज्यादा ऐसे स्कॉलर्स निकालने पड़ेंगे जो इंडियन स्कॉलरशिप को गेन कर रहे हो। और एक बार आपके इंस्टीट्यूशन से ज्यादा CSR फेलो या UGC फेलो निकलते हैं तो यू विल फील कि आपकी, क्योंकि अल्टीमेटली मैंने जैसे स्टार्टिंग में भी बोला कि यूनिवर्सिटीज आर ओनली रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्कॉलर्स। सो व्हेन वी हैव अ स्कॉलर then our institute will be a noble one. So this is my suggestion कि आप लोग अपने इंस्टीट्यूशन में CSR और UGC को भी आप फोकस में लाएं और ई लर्निंग पर थोड़ा फोकस करें,
कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा ई लर्निंग मटेरियल या टेक्नोलॉजी की हेल्प से टैबलेट के थ्रू कंटेंट देने की कोशिश करें, या उनको CSR नेट JRF के लिए जो जो चीजें रिक्वायर्ड हैं वो आप उनको कंटेंट अवेलेबल कराने की कोशिश करें. वी हैव डन दिस एक्सपेरिमेंट मुंबई कलीना कैंपस एंड यू विल फील अमेज कि वहां पर बच्चे जो है लाइफ साइंस में या केमिकल या फिजिकल साइंस में बच्चों ने बहुत अच्छा किया. मतलब बच्चों की रैंक जो है वो अंडर 100 आई, कुछ बच्चों ने गेट में बहुत अच्छा किया, कुछ बच्चों ने DBT की स्पॉन्सरशिप ली. तो इससे यूनिवर्सिटीज में इन्वायरमेंट चेंज होता है. और आपको भी पता है कि NAAC की रेटिंग में स्टूडेंट प्रोग्रेशन कॉलम है आपका. अगर आप स्टूडेंट प्रोग्रेशन कॉलम में अगर आप टेक्निकल इनहांसमेंट लर्निंग को बढ़ाते हैं तो आपकी यूनिवर्सिटी का नाम ऑल ओवर इंडिया जो है वो फेमस होगा. सो वी नीड टू इनकलकुलेट इन अ करिकुलम. हम इस तरह से करें कि जो हमारा PG का करिकुलम है उसके पैरेलल में रिमेडियल में रखें या इंस्टीट्यूट में ही आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए उनको फोकस करें. अदरवाइज आप देखें कि बच्चा PG करके भी MP में और ऑल ओवर इंडिया देखें आप सिविल सर्वेंट की एग्जाम की तैयारी कर रहा है. तो क्या ये जो रिसर्च स्कॉलर हैं, आप लोग डिग्निटरीज बैठे ही हैं सारे लोग, तो यू विल ऑल अंडरस्टैंड कि यदि डॉक्टरेट कर सिविल सर्वेंट ही बनना था तो फिर ये देश आप बताइए कैसे आगे जाएगा. बिल्कुल सर. The only way to go ahead is you have to have a scholarship in India, and this is the way you can change the present curriculum of India. क्या आप इस तरह से चेंज कर सकते हैं. और कोविड आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है. अब आपको लोगों को समझाना भी नहीं पड़ेगा. बच्चे भी आजकल ये चीज समझ रहे हैं कि इफ यू आर गेटिंग दिस टाइप ऑफ करिकुलम इन आवर यूनिवर्सिटी प्रोग्राम कि हमको कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन भी मिल रही है, आगे फ्यूचर हमारा जो है वो सिक्योर्ड है. सो दिस विल चेंज एंड टू एंड गेम. सो दिस इज माय आइडिया. थैंक यू सो मच सर, आपने या बहुत अच्छे पॉइंट्स को कवर अप किया है. मैम. डेफिनेटली PG करने के बाद बच्चे दो ही तरफ देखते हैं कि या तो PhD करें या कुछ नहीं तो टीचिंग करने लगते हैं. और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या तो वो पास होते हैं या थक हार के फिर छोड़ देते हैं. तो अगर हम इसको टारगेट करते हैं अपने सिलेबस में और इनपुट में लाते हैं इसको, यदि सर्टिफिकेट कोर्सेज या स्किल या डिप्लोमा कोर्सेज में इसको हम करते हैं तो डेफिनेटली हम उस चीज़ पे काम कर पाएंगे कि 5 साल बाद बच्चा कम से कम नेट या नेशनल लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक कर सके. सो पॉइंट इज नोटेड सर. थैंक यू सो मच. मैम एक पॉइंट और है कि आई कैन हेल्प यू आउट कि जैसे आई वाज वर्किंग फॉर मुंबई यूनिवर्सिटी कलीना कैंपस. साउथ में मैं अन्नामलई के साथ भी काम करता हूँ. सेवरल IITs आर आल्सो इन कनेक्ट विद मी. तो हम क्रॉस एक्सचेंज प्रोग्राम भी कर सकते हैं कि कोलकाता में हमारे बच्चों को हम भेजें, वहाँ के बच्चों को यहाँ लाएं. तो ये क्रॉस जब बच्चे आएंगे उससे भी हमारे बच्चों में कॉम्पिटिटिव बिहेवियर डेवलप होगा. सो नाइस ऑफ यू सर. हाँ, ये तो एक वैलिड पॉइंट है और इसमें मैं भी अग्री करती हूँ. जैसे हमारा नेशनल लेबोरेटरी है, हमारा जो है आपका नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चर भी इंसेक्ट रिसोर्सेज है. तो वी आर ओनली द अथॉरिटी ऑल ओवर इन इंडिया टू हैंडल ऑल दिस इंसेक्ट रिसोर्सेज, पेस्ट मैनेजमेंट एंड ऑल अदर थिंग, एंड वी हैव सो मेनी गुड टीम फॉर सिस्टमैटिक्स. तो ये हमारा बिल्कुल यूनिक है ऑर्गेनाइजेशन. तो आप चाहें तो स्टूडेंट्स को यहाँ पर भी भेज सकते हैं. प्लस नैनो, जैसे मेरा खुद का काम नैनो टेक्नोलॉजी और नैनो सेंसर पे है, तो आप चाहें तो यहाँ पर भी कुछ स्टूडेंट्स डेब्यूट कर सकते हैं अंडर गाइडेंस ऑफ मी, एंड डेफिनेटली आई विल गाइड देम हाउ टू गो अहेड अबाउट फॉर नेट एग्जाम्स एंड ऑल अदर थिंग आल्सो, हाउ टू गो फॉर यू नो कि किस तरीके से वो रिसर्च प्रोजेक्ट्स में भी आ सकते हैं. तो ये सब हम उनको गाइडेंस दे सकते हैं. दिस इज अ वेरी वैलिड पॉइंट. एक्सचेंज प्रोग्राम्स तो होना ही चाहिए मैडम, नेशनल और सारे लैबोरेटरी से. मैं तो इंटरनेशनल भी बोलूंगी, बट वी हैव कंस्ट्रेंट फॉर मनी, सो श्योरली वी विल दिस scholarship we can manage for the scholarship if we are having a meritorious student in India. So if we are radicalizing the present, then only we will have the future. Okay. Agreed. First, we have to have a collaboration, some amount with people, person or some good institutions like Innovative institutions, and then further we'll launch some certificate or diploma courses or some exchange program between us. I think that's the point. Okay, sir. Okay. Thank you so much, sir. Thank you, ma'am, for the valuable comment. And anybody else want to say something on this agenda? Anybody else? No. Okay. Proceed further. Agenda number 6, hands-on training courses. Is there any suggestion of particular hands-on training course we can design for upcoming session?
hands-on training program in a particular way that could be more interdisciplinary and beneficial for all these students like physics, chemistry, mathematics streams, and other students also, those who are from science stream. So is there any idea for it, hands-on training program from anyone? No? Okay, we'll discuss on later. Okay, now the last one, agenda number 7. Any other topic or suggestion as per our discussion of BOS minutes during the past minutes? Something else, any new idea? Ramakant sir, Amit sir? मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि मैंने पहले भी बोला था कि करिकुलम में यूजीसी ने, आईसीटी ने ऑनलाइन जो कोर्सेज हैं उनके द्वारा अप्रूव्ड स्वयं एनपीटीईएल उन्हें इंक्लूड किया जाए, उसकी बजाय उनका एक थ्योरी पेपर हम कम कर सकते हैं, क्योंकि हम प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं तो इसको हम जल्दी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। नॉर्थ इंडियंस ऑलरेडी बहुत पीछे हो गए हैं। मैं इसका सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हूँ एलएनसीटी में, एंड आई हैव डन more than 20 courses and recognized as an NPTEL star in 5 different domains. So I can understand the utility and significance of these courses. और मैंने जब सबसे पहले किया था स्टूडेंट को, इसलिए 2017 में फर्स्ट कोर्स ऑन एनालिटिकल केमिस्ट्री, कि मैं इसके बाद बताऊंगा बच्चों को इसका महत्व क्या है। उसके बाद हमारे ग्रुप से मोर देन 4000 स्टूडेंट्स ऑलरेडी सर्टिफाइड हो चुके हैं, और उसका इनडायरेक्ट लाभ ये हुआ है, डायरेक्ट बोल सकते हैं, जिसकी जैसी प्रायोरिटी है कि जो बच्चे गोल्ड मेडलिस्ट थे C++, जावा या आर सॉफ्टवेयर में, उनको इन्फोसिस ने डायरेक्ट इंटरव्यू करके कॉल किया और उनका सिलेक्शन हुआ है। तो जॉब अपॉर्चुनिटी भी बनेगी और आपके एनहांस भी होगा। उसमें सॉफ्ट स्किल, स्ट्रेस मैनेजमेंट, मतलब डिफरेंट मल्टीडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स हैं, लैंग्वेज हैं, जर्मन, रशियंस, और IITians, IISc के प्रोफेसर्स को पढ़ाते हैं। और दूसरा इंडियन मूक्स है। जब हम बात कर रहे हैं आत्मनिर्भर भारत की, तो हमें अपने इंडियन मूक्स को सपोर्ट करना पड़ेगा। जहाँ तक बात है कोर्सेरा मैंने किया है, कोर्सेरा में क्या होता है कि प्रोटोकॉल एग्जाम नहीं होता है, उसमें आप 8 घंटे के बाद आफ्टर एवरी 8 आवर्स यू कैन सी, जैसे आपने अगर वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो आपने सब में ए लगा दिया, मालूम पड़ा 2 क्वेश्चन आपके सही हो गए, उसके बाद 8 घंटे बाद आपने फिर सब में बी भी लगा दिया, वो 2, ऐसे करके आपका वो कोर्स हो जाता है। अब जिसको सीखना है वो जरूर अच्छे से करेगा, बट एक अपने को अपनी एक जिम्मेदारी बनती है कि स्टूडेंट में इनकलकेट करें वो कैरेक्टरिस्टिक्स, एग्जाम को फेस करना है उन्हें। तो एनपीटीईएल क्या करता है कि 75% जो मार्क्स हैं वो प्रोटोकॉल एग्जाम जो होती है IOT सेंटर पर, उससे लेता है। तो बच्चा तैयारी करता है, वो उसका एक वो सब कुछ सीखता है कि हाउ टू, मतलब उनके इतने अच्छे मैसेज आते हैं, अलर्ट मैसेज, उनके मेल आते हैं, तो उसमें कि हाउ टू ड्राफ्ट, हाउ टू राइट, हाउ टू रिप्लाई, ये सब सीखता है। फिर टीचर जो IITs के हैं, जो पूरे वर्ल्ड में माने जाते हैं, उनका जो बॉडी लैंग्वेज है, उनका जो प्रेजेंटेशन का तरीका है, वो सब कुछ सीखने मिलता है बच्चे को, एक ओवरऑल लर्निंग होती है। तो हमें इसको इंक्लूड करना चाहिए और उसका एक क्रेडिट ट्रांसफर दे देना चाहिए। और चाहे उसमें कॉलेज, तो जो ऑटोनॉमस इंजीनियरिंग कॉलेज है, GEC जबलपुर है, MITS ग्वालियर है, UP टेक्निकल यूनिवर्सिटी, उन्होंने उसमें क्या है, NPTEL खुद जो ST SC OBC स्टूडेंट है उनको 50% फी वेवर देता है, और जो मेरिटोरियस है उनको फीस वापस कर देता है उन्हीं के अकाउंट में। वो कई यूनिवर्सिटीज ने क्या किया है कि वो खुद ही फीस भरते हैं। तो सब ऑप्शन ओपन है, और हम तो मोटिवेशन के दम पे 4000 बच्चों को NPTEL कोर्सेज करवा चुके हैं, तो मोटिवेशन की ताकत हम जानते हैं, हम टीचर हैं। तो मेरा ये सजेशन होगा कि ये ऑनलाइन कोर्सेज हैं, टाइम भी चेंज हो रहा है, कोविड ने हमें सिखा दिया है कि चाहे IITians हों, चाहे ISEC वाले हों, चाहे LNCT वाले हों, ये सबको घर पे रहकर पढ़ना पड़ा 2 साल। वो जो MBA MCA कोर्सेज थे वो तो घर बैठे हो गए उनके, तो इसमें कोई ऐसा डिफरेंस रहा नहीं ज़्यादा, क्योंकि ऑनलाइन में तो बच्चे को वो अपने लेवल पे ही पढ़ता है, सब कुछ अवेलेबल है आजकल, ओपन है एकदम। तो ये हम करें अपने लेवल पे, तो बच्चे सीखेंगे, उनको एक सपना होता है। तो अब ओपन है, ओपन सोर्सेज अवेलेबल हैं, डिफरेंट कोर्सेज भी करना चाहे तो कर सकते हैं, कोर्सेरा है, ऑक्सफोर्ड है, मैनचेस्टर, सब करवा रहे हैं। पर ये अपना इंडियन मूक्स है, वो इंडियन करिकुलम और सिलेबस के अनुसार उसको डिजाइन किया गया है, ग्लोबल नीड के अनुसार डिजाइन किया गया है, तो इसको अपन अडॉप्ट करें। थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच सर। सर हमारे यहाँ टीचर्स तो काफ़ी सारे कर रहे हैं कोर्सेस, और अभी भी है हम लोग उसमें एनरोल, मैंने खुद भी किया है NPTEL के अंतर्गत 2 सर्टिफिकेट कोर्सेस, और लेकिन आप कोर्सेरा भी हम लोगों ने लेके रखा है। जी 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 मैम। वेरी नाइस,
मतलब अपन टीचर तो करती है मैडम, स्टूडेंट को करवाना है, वो एक मेन हाँ टारगेट जी। होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर। मैं कह रही हूँ आपने बहुत अच्छा पॉइंट ऐड ऑन किया है कि अगर हम इसको क्रेडिट बेस्ड सिस्टम में लेकर आके कंपलसरी करते हैं तो डेफिनेटली ये बहुत अच्छा हमको आउटपुट देगा। तो सर बिल्कुल हम इस चीज़ पे ध्यान देंगे। समथिंग कंक्लूडिंग रिमार्क फ्रॉम anyone, any suggestion? डॉक्टर दीपा मैम, कंक्लूडिंग रिमार्क, कुछ सजेशन ऐड करना चाहेंगे आप? मुझे तो लग नहीं रहा है, क्योंकि जितने पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं दैट इज वेल एंड गुड। बस आप इसी पे एम्फेसिस कीजिए कि वी शुड हैव अ कोलैबोरेशन ये विद मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो भी उनको डील करता है। एंड आई विल यू की श्योरली आई विल हेल्प यू फ्रॉम NBIR साइड, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी प्लेस विद सो मेनी यूनिवर्सिटीज, तो मैं आपको इसके लिए हेल्प कर दूंगी। और बाकी तो मैंने फाइनलाइज बोल दिया है, एवरीथिंग इज ओके, तो बेस्ट विशेस। थैंक यू सो मच मैम। ओके, तो हमारे पास काफ़ी सारे वैल्यूएबल पॉइंट्स निकल कर आए हैं जिनको हम, जैसे कि मैंने पहले कहा था कि हमारा जो सीरीज है। आई थिंक मैम विपुल सर शायद छूट गए हैं। विपुल सर है, आई रिक्वेस्ट टू विपुल सर। No, I am not concluding right now. No. Okay. Nobody left. She asked to everyone. She asked to everyone. Yes sir. One more request, please थोड़ी देर के लिए सभी वीडियो अपना ऑन करें, एक स्नैपशॉट ले लें, देन हम कंक्लूडिंग रिमार्क के साथ end Actually, in my system, I don't know why it is not opening. However, I am trying here, but it's not opening. I don't know why. Okay. I will edit your picture, sir. Don't worry, sir. Okay, बाकी move on करें. Okay, just for 1 minute. थैंक यू सो मच। मैं ये एड ऑन करना चाह रही थी कि काफ़ी सारे रिमार्केबल और बहुत वैल्यूबल आउटपुट्स निकल कर आए हैं जिनको रैदर करिकुलम और सिलेबस के अलावा हम जो एड ऑन कोर्सेज करते हैं, सर्टिफिकेट है, स्किल कोर्सेज है, स्किल एनहांसमेंट प्रोग्राम्स हैं, MOU है, एक्सचेंज प्रोग्राम है, इनको हम इन पर काम करके काफ़ी बेहतर एक अच्छा करिकुलम डिज़ाइन कर सकते हैं। और हम कोशिश करेंगे कि इनमें से कुछ पॉइंट्स जैसे कि टीचिंग को डिजर्टेशन में ऐड किया जाए, स्ट्रेस मैनेजमेंट का कोर्स ये हम शॉर्ट नोटिस पे ला सकते हैं, इस पे हम काम कर सकते हैं। और जितनी चीज़ें पॉसिबल हैं जो विद इन 3 मंथ्स के अंदर हम लोग इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और हम बिल्कुल प्लान करेंगे। थैंक यू सो मच। और जो बड़े प्रोग्राम्स हैं उनके लिए मैं बिल्कुल कांटेक्ट करूंगी डॉक्टर दीपा से, डॉक्टर अमित सर से, विपुल सर, रमाकांत सर। बिल्कुल हम लोग आपकी यूनिवर्सिटीज़ के साथ MOU करेंगे और फर्दर जो हमारे लॉन्ग टर्म वाले प्रोजेक्ट हैं उन पे काम करके नेक्स्ट POS में हम उन्हें इम्प्लीमेंट करने पर काम करेंगे। सो दिस इज द ऑल about the concluding remark. So thank you everyone for giving your valuable time and accepting our invitation, joining us. And last but not least, I would like to a very big thank to our team, Dr. Ritu Pajwal ma'am, for their motivation and support. Consistently, she motivates me to do so. And congratulations to all of you for this successfully conduction of Board of Studies meeting. Thank you all. Thank you so much. We're looking forward for some more output from you. Thank you, Dr. Thank Deepa. you, madam. Thank you, Dr. Thank you to all. Dr. Amit, Ramakant sir. Thank you, Ranjit sir. Thank you, Dr. Chitra ma'am, Dr. Bhavna. Thanks a lot. Good day, ma'am. Thanks to all. Yeah. Thanks to all. Very nicely conducted this meeting. Very, very thanks, dear. Ma'am, thank you so much. Thanks a lot. So should I conclude the session with your eminent permission? Should I end the meeting? Ma'am? Yes. Conclude sir. Yes. आप कुछ कहना चाहेंगे मैम? मैं बस यही कहूंगी, मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। Thanks to all. Thanks all. Thanks again. Thank you so much. Now we are end of the session. Thanks a lot.